Yes, students, very good morning to all of you. Welcome back to your math class. So after exams, this is going to be your first class. So though I haven't checked your papers have been checked by some other teacher. But after just have a glance at the list and the marks obtained by you, I was very surprised that I was expecting better result from 7th A, but you were not uh, coming upon my expectation, right? Not even a single student is getting 50 out of 50. See, it means some lacking is there. So we have to see that where that lacking is, and we have to improve ourselves, right? For the further exam. So you will see today, you will see your papers and you will see that what kind of mistakes you have done, you have made, and avoid to repeat those mistakes in future, right? So let us start. Let us continue for the syllabus for the December exam. Now your exam will be in December. So December test जो आपके होते हैं उसके लिए we'll start. We'll continue with the syllabus. And the chapter that we are going to start is chapter number 3, data handling. First of all, let us see what is the meaning of the word data. इतनी रिवीजन आपकी हुई थी हर एक चैप्टर को, एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया, थिंक डिस्कस राइट, इतने टेस्ट हुए, इतनी आपको एमसीक्यूज की सारी असाइनमेंट्स भेजी, फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग इतना परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छे से. अगर आपको लगता है दैट देयर इज सम लैकिंग, दैट यू आर लिसनिंग ऑनलाइन, यू आर नॉट फेसिंग द टीचर, इंटरेक्टिंग विद द टीचर, सो टेक एन इनिशिएटिव, कम टू स्कूल. अगर आपको लग रहा है कि कहीं इस वजह से लैकिंग रह गई कि हम फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पाए, क्लास में और बात होती है, घर पे हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, तो कम आउट ऑफ योर फेयर एंड कम टू स्कूल, राइट? अदरवाइज इट्स योर ओन डिसीजन. आई कैन जस्ट सजेस्ट यू दैट दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन इम्प्रूव, राइट? चलिए, सो डाटा हैंडलिंग, द फर्स्ट वर्ड दैट इज देयर इन द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज डाटा. Let us see that what is the meaning of this word data. आपके पास डेटा किसी भी चीज का हो सकता है, राइट? डेटा ऑफ नंबर ऑफ बेंचेस ऑफ द क्लास, डेटा ऑफ नेम्स ऑफ द टीचर्स ऑफ योर स्कूल, right? Boris, please put one message in the book group that join math class as early as possible. Again, they are having confusion कि first period or third period. Your first period is for Thursday, Friday, and Saturday. For first 3 days, the period will be third one that is going on, right? So do attend the classes regularly, because you can see your performance. Just because of irregularity in the classes, you have lose marks, and you have not done to the paper that much appropriately that I was expecting from you. Anyhow, data मैं आपको बता रही थी, it can be the collection of the names of the teachers of the school. Data can be the collection of the boys of your class. Data can be the collection of all the students of 7th class who are getting 50 out of 50, and that is 0 in my class. मेरी क्लास में किसी बच्चे के 50 में से 50 मार्क्स नहीं आए. Even Gaurish is not getting 50 on 50. मिस्टेक्स जो आपने की आप देखोगे. चलिए, सो व्हाट इज डाटा? इट इज द collection of facts and figures. It is the collection of facts and figures. जब हम फिगर्स को, नंबर्स को, जो कि नंबर और फिगर्स को होते हैं, नंबर्स को, फैक्ट्स को, किसी भी चीज को हम जब कलेक्ट करते हैं, उस कलेक्शन को, दैट कलेक्शन इज नोन एज डाटा. उस कलेक्शन को हम डाटा बोलते हैं. अब आपने पिछली क्लासेस में 6th में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, आई थिंक हिस्टोग्राम नहीं, बार ग्राफ आपने बनाना सीखा था. प्रीवियस क्लासेस में आप डाटा की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते थे बाय मेकिंग द बार ग्राफ, एंड मोर ओवर you have represented the data in the form of pictorial form, जहाँ पे आप पिक्चर्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. That was the pictorial representation of data. Now the chapter is data handling. That means we have to handle the data. सबसे पहले meaning of the data. Now you see how we can handle the data. We can handle the data
by organizing it. किसी भी चीज को हैंडल करने का तरीका होता है उसको ऑर्गेनाइज करना। हमारी अलमीरा में इतने क्लोथ्स हैं, अगर हम इनको अनऑर्गेनाइज्ड वे में रख दें तो एकदम से कहीं जाते टाइम हमें जो चीज चाहिए होगी वो मिल नहीं पाएगी। अगर हम अपनी अलमीरा के सारे क्लोथ्स को, अपने जो आउटिंग के लिए ड्रेसेस है उनको अलग से रखते हैं, घर पे डालने वाले क्लोथ्स हमारे अलग हैं, यूनिफॉर्म हमारी अलग पड़ी है, इफ वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट इन अ वेरी गुड वे, देन we can easily find whatever we need from our almirah, right? Similarly, if data is organized in a proper way, अगर हम डाटा को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर लें तो उसकी स्टडी करना आपके लिए इजी हो जाता है। लुक एट योर बुक्स एट पेज नंबर 58 पेज पे देखो अपनी बुक पे। क्या है, क्लास के कुछ रोल नंबर्स के 1 to 9 रोल नंबर्स के मार्क्स जो हैं वो टीचर ने कलेक्ट किए। 1 to 9 रोल नंबर्स के मार्क्स 58 पेज पे देखो। 1 to 9 रोल नंबर के मार्क्स टीचर ने कलेक्ट किए और एकदम से टीचर को ये निकालना, ये पता करना मुश्किल लग रहा था कि किस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं, किस बच्चे के लोएस्ट मार्क्स हैं। देन व्हाट द टीचर इज डूइंग, टीचर इज अरेंजिंग द डाटा, ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। कैसे? उसने सबसे पहले कॉलम में रोल नंबर्स लिखे, सेकंड कॉलम में नेम्स लिखे और थर्ड कॉलम में मार्क्स लिखे। She is arranging the data, she is organizing the data in such a way such that the first column represent the roll numbers, the second column is representing the names, and the third column is representing the marks of the students. That means marks obtained by the student. बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, थर्ड कॉलम उसने उसका बनाया। अब जब उसने इस डाटा को अरेंज किया, मैं अभी सारा डाटा नहीं लिखूंगी, डाटा को अरेंज करने के बाद मार्क्स में लिखने लगी हूँ 23, 35, 48, 30, 25, 48, 46, 38, 35, 32। ये मार्क्स टीचर ने नोट कर लिए रोल नंबर के अकॉर्डिंगली। दिस इज रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रोल नंबर्स के मार्क्स टीचर हैज नोटेड डाउन। यहाँ पे सीरियल ऑर्डर में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे अलग से दिया हुआ है 3, 6, 10, 2, 9। मैंने सीरियल ऑर्डर में ले लिया, ठीक है। एक्चुअली सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ अनदर टीचर, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ वन टीचर। डोंट गो फॉर दैट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट हाउ टू ऑर्गेनाइज द डाटा। अब इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में से टीचर को एक बात बड़ी आसानी से पता चल सकती है कि दो ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स हाईएस्ट हैं। देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स 48। अब हमें ये नहीं पता, आज पता चल जाएगा आपको कि आपकी क्लास में मैथ्स के मार्क्स 48 भी हाईएस्ट हैं या नहीं, क्या इससे भी कम हो गए। वी विल सी वेरी सून, आफ्टर सम टाइम वी विल कम टू नो, राइट। देन यू सी द लोएस्ट मार्क्स obtained by roll number 1 and that is 23. I don't know that what is the score of roll number 1 of your class, but this data is telling that roll number 1 is getting the lowest marks. This is organization of data. डाटा को ऑर्गेनाइज कर देना इस तरीके से ताकि उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो स्टडी है वो हमारे लिए आसान हो जाए, राइट। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा, राइट। नेक्स्ट, देन ट्राई दिस में उसने क्वेश्चन लिखा है, वेट at least 20 children of your class, organize the data and answer the following question using this data. कहता अपनी क्लास के 20 स्टूडेंट्स का वेट जो है उसका डाटा कलेक्ट करो, ठीक है। किसी का अब इस एज में आई थिंक 30 to 35 के बीच में आप लोगों का वेट होगा, ठीक है। तो किसी का 32 होगा, किसी का 33, किसी का 34। तो आपने यहाँ पे वेट लिख देना है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि
यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स का नेम, देन वेट, राइट। फिर आप देखोगे कि इसने पूछा है हु इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा वेट किसका है क्लास में, कोई बता सकता है? मोटू कौन है सारे क्लास में से? मुझे लगता है सारे ठीक हैं, है ना, ये वेरी करेगा। गौरिश बताना था, गौरिश कोई पर्सनल कमेंट नहीं होगा क्लास में ना, जो भी होगा रिटर्न फॉर्म में होगा, राइट। तो सबसे ज्यादा वेट जो हैवीएस्ट है वो यू कैन नो व्हाट इज अ कॉमन वेट। जब आप पूरा डाटा बना लोगे तो आप देखोगे कि मान लो 34 वेट है, किसी आपने स्टूडेंट्स का नाम लिखा, आगे 34 मैक्सिमम लोगों का वेट है, तो कॉमन वेट कौन सा हो गया? 34, राइट। दिस इज जस्ट एक्टिविटी यू कैन डू विद द हेल्प इन द ग्रुप ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एज वेल। आप अपने फैमिली मेंबर्स में कर लो, अपने कजन्स में कर लो, या फिर अगर आपको इतना शौक है तो एक दूसरे से वेट पूछ के अपने 10 जो फ्रेंड्स हैं आपके क्लोज, उनके साथ कर लो ये एक्टिविटी, है ना, कि अपना वेट बताओ, अपना वेट बताओ, अकॉर्डिंगली 10 नाम लिख के उनके आगे वेट लिख दो। दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द योर वेट एंड योर बेस्ट फ्रेंड वेट। उसके बाद आप अपना वेट देखो कितना है, आपके बेस्ट फ्रेंड का वेट देखो कितना है, फिर देखो दोनों में से किसका वेट ज्यादा है और कितना ज्यादा है, और डिफरेंस निकालो। मान लो आपका वेट है 36 kg और आपके बेस्ट फ्रेंड का वेट है 30 kg, तो डिफरेंस क्या हुआ? 6 kg, right? This is just an activity. I'm just explaining it just to have a, you can say, glance of the chapter. Otherwise this is activity, you can do it yourself. Chalo. Now come the word representative of data. Representative of data. आपको पता है अगर हम अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो इलेक्शंस होते हैं, जो जीत जाता है वो हमारे एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, ठीक है ना, जिसको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड बोलते हैं, या ऐसे वोट्स डाल के फिर हम जैसे इलेक्शंस होते हैं हमें पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन होते हैं हम अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, राइट। इसी तरह से हमारे पास जो डाटा है उसका भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब यहाँ पे हम वोट करने से तो रहे, वोट थोड़ा कर सकते हैं। अगर डाटा की इतनी वैल्यूज लिखी हैं तो मैं ये थोड़ा बोलूंगी कि ये मेरे पास डाटा की 10 वैल्यूज हैं, तो आप बताओ 6 को कौन पसंद करता है, 5 को कौन पसंद करता है। इस तरह से थोड़ा हम इसका रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ लाइकिंग कि कौन सा बंदा किस नंबर को कितने ज्यादा बच्चे लाइक करते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव बना दो। सो डाटा के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, देयर कम्स सर्टेन न्यू डेफिनेशन, देयर कम्स सर्टेन न्यू टर्म्स। देखो जरा ध्यान से, ही सेज you might be aware of the term average and would have come across statement involving the term average day to day life. सबसे पहले उसने एक वर्ड आपके सामने दिया which is going to be representative of the data and that is called average. एवरेज वर्ड हम बहुत जगह पे हमने इसको सुना, इसका यूज भी हमने किया कि ऑन एवरेज, बच्चे ऐसे आंसर करते हैं ना, ऑन एवरेज मैम मैं 5 आवर्स अ डे पढ़ता हूँ। ठीक है, ऐसे कई बार हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि आप डेली कितने आवर्स स्टडीज को देते हो, स्टूडेंट ये दे यूज टू आंसर इट एज मैम आई स्पेंड 5 आवर्स ऑन एवरेज। ठीक है, हमें मीनिंग कुछ नहीं पता एवरेज का, हम ऐसे ही कह देते हैं ऑन एवरेज इट इज 5 आवर्स, राइट। सिमिलरली जैसे हम पूछे कि आपकी क्लास के बच्चों की एज क्या है, तो आप कहोगे ऑन एवरेज द एज इज 12 years. On average the age is 12 years. इसी तरह से आप और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि ड्यूरिंग दिस समर एवरेज टेम्परेचर
of days, particular day, it was 43 degrees Celsius. Now let me explain what is the meaning by adding the word average here. हम ये भी कह सकते हैं मैं 5 hours a day पढ़ता हूँ. जब मैंने कह दिया that I study 5 hours a day, इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन मैं 5 घंटे पढ़ता ही पढ़ता हूँ. बट अगर मैंने कहा ऑन एवरेज आई स्टडी 5 hours a day, what it means, इसका मतलब ये है कि ज्यादातर दिन मैं 5 घंटे ही रोज पढ़ता हूँ, पर कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर ज्यादातर मेरा रूटीन क्या है, आई स्टडी 5 hours a day. फ्रीक्वेंटली मैं 5 hours a day पढ़ता हूँ, अक्सर मैं 5 hours a day पढ़ता हूँ, बट ये श्योरिटी नहीं है, हो सकता है किसी दिन वो 3 भी हो जाए, 4.5 भी हो जाए. एवरेज का मतलब ये हुआ. ऑन एवरेज द एज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास इज 12 years. अगर सारे बच्चों की एजेस देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 12 years के होंगे. हो सकता है एक बच्चा जो है वो लेट स्कूल आया हो या जल्दी स्कूल आ गया हो, तो उस अकॉर्डिंगली उसकी एज जो है वो वेरी कर जाएगी, कम या ज्यादा हो सकती है. बट अगर हम ऑन एवरेज देखें, मतलब मैक्सिमम बच्चों की एज जो है वो 12 years. Average temperature of particular day during the summer, it remains 43 degrees Celsius. Most of the time, अगर हम temperature of the days note किया जब हमने, तो वो 43 डिग्री सेल्सियस था. ठीक है, वो 43 डिग्री सेल्सियस था. कभी कभी आगे पीछे भी हो सकता है. एवरेज का मतलब ये है. इसका मतलब हमने मोस्ट फ्रीक्वेंटली आने वाला जो नंबर है उसको एवरेज की तरह देखते हुए उसको डाटा का क्या बना दिया, रिप्रेजेंटेटिव. इट बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा. So what is average? Average is the first measure which gives us the representative of the data. देखो जरा ध्यान से. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा ग्रुप था आपके पास कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हो, 5 5 5, बार बार 5 5 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 3 आया, मोस्ट टाइम 5 आ गया. यानी कि जो आपके डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मींस, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, किसी का व्यवहार. हम कहते हैं उसकी टेंडेंसी ऐसी है, वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही बात करेगा. जो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब कि डाटा जो है वो मोस्टली इस वैल्यू के अराउंड अपने आप को सेंटर कर रहा है, अपने आप को किस चीज के अराउंड केंद्रित कर रहा है. हिंदी में इसको केंद्रित बोलते हैं. किस वैल्यू के अराउंड डाटा अपने आप को सेंटर कर रहा है, घूम फिर के उसी वैल्यू पे हम आ जा रहे हैं, सेंटर कर रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. और इस बार जो डाटा का रिप्रेजेंटेटिव है, डाटा की जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो 5 hour पे आके खड़ी हुई, तो एवरेज हुई 5 hour. इसका मतलब जो एवरेज है, दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी की बहुत सारी मेजर होंगी, हम करेंगे. अभी हम एवरेज को डिस्कस कर रहे हैं, हम मीडियन को भी करेंगे, मॉड को भी करेंगे. डाटा की जो सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत सारे मेजर होंगे, और इसकी सेंट्रल टेंडेंसी का, डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी का वन ऑफ द मेजर इज एवरेज. यस कार्तिक? यस मैम. मैम जो सेंट्रल टेंडेंसी है मैम, वो एवरेज का अदर नेम ही है कि वो जो 5 hours या 12 hours है उसके लिए यूज करते हैं टर्म? नहीं, डाटा जो है वो किसके अराउंड सेंटर कर रहा है, किस पे केंद्रित है, किस पे ज्यादा घुमा के आ रहा है. डाटा की टेंडेंसी सेंट्रल किस पॉइंट की तरफ है, किसकी तरफ केंद्रित है, उसको हम बोलते हैं एवरेज. इट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. कि डाटा की जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको मेजर करने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं एवरेज. ठीक है कार्तिक? यस मैम. यस सक्षम स्मर्थ, बोलो बेटे. यस मैम. मैम एवरेज की कोई डेफिनेशन है? अभी दिखवाऊंगी, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम वहां तक पहुंचेंगे. ठीक है? ओके मैम. ओके. तो अभी हमने देखा कि एवरेज जो है, दिस इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी.
डाटा ज्यादा किसकी तरफ घूम रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी मींस इस पे आके बार बार वैल्यू डाटा की रुक रही है, 5 पे आके रुक रही है, तो दैट बिकम्स अ एवरेज ऑफ द डाटा। तो सबसे पहले आपने एवरेज को याद रखना है। एवरेज इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इतना याद, वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा जो है उसको करना शुरू किया। उसमें से पहला हमारे पास आया एवरेज। एवरेज से मैंने क्यों शुरू किया, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में हम इसको एवरेज बोलते हैं कि ऑन एवरेज आई डू दिस वर्क इन 5 hours, ऑन एवरेज वी गो टू पिकनिक 2 hours a day, ऑन एवरेज आई वॉच टीवी 1 hour a day। ठीक है, हम अपनी भाषा में इसको एवरेज बोलते हैं, बट मैथमेटिकली वी कॉल दिस फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा, जिसको कि एवरेज ही हमने बोला, अरिथमेटिक मीन। arithmetic mean. Arithmetic mean is the first representative of data. एवरेज और अरिथमेटिक मीन में बस इतना सा फर्क समझ लो। एवरेज की जब हम बात करते हैं, हम इसको जनरली आम भाषा में कहते हैं, इसको कैलकुलेट नहीं हम करके बताते हैं, हम वैसे ही बता देते हैं। अरिथमेटिक मीन को हम कैलकुलेट करने का मेथड सीखेंगे कि कैसे अरिथमेटिक मीन को हम कैलकुलेट करते हैं। पेपर में चाहे कल्ला मीन आ जाए, चाहे अरिथमेटिक मीन आ जाए, वन ऑफ द सेम थिंग। What is this arithmetic mean? Let us see. This is the most common representative. The most common representative. सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा। बार बार आपको पता है, जब आपकी क्लास की मार्क्स की लिस्ट बनती है तो हम सारे मार्क्स की एवरेज निकालते हैं। एवरेज से हमें पता चल जाता है कि बच्चों के मार्क्स, क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर तो आपकी एवरेज 100 में से 98% आ गई, इसका मतलब क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आपकी एवरेज 60% से बिलो गई, इसका मतलब ठीक ठाक ही है। 60% गई फिर भी ठीक ठाक ही है, 60 से अबव गई फिर हम कहते हैं कुछ अच्छा रिजल्ट। सो एवरेज इज द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो इसकी डेफिनेशन हुई कि ये वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव होता है डाटा का। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे डील करेंगे? अरिथमेटिक मीन का मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है? लेट अस सी। मान लो आपके हिंदी के मार्क्स मैंने बोल दिया आपके 50 हैं 50 में से, मैथ्स में सपोज आपके 47 है 50 में से, और इंग्लिश में सपोज आपके 45 है 50 में से। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करो। अरिथमेटिक मीन कहो चाहे मीन कहो, वन ऑफ द सेम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस अरिथमेटिक मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, sum of observations, observation means सारी values, observations over total number of observations, sum of observations over total number of observation। अब sum of observation क्या है? observation first is 50, next is 47, third one is 45। ये है 3 और इनका नंबर कितना है? टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 142 over 3। This is the formula for mathematical formula to calculate arithmetic mean. What is arithmetic mean? This is the most common representative of the data. That is the most common representative around which the data is centered. जिसके आसपास डाटा घूमता है, सेंटर्ड है। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, सॉल्व करें जरा इसको,
approximately this will be 47.3. हाँ जी गौरीश, what do you want to ask? यस मैम, अगर मैम एग्जाम में हमें एवरेज फाइंड करना आ जाए तो मैम हम यही वाला सेम फॉर्मूला लगा के हम एवरेज फाइंड करेंगे ना? हाँ, एवरेज का मतलब सेम ही है, एवरेज से ही, एवरेज आपकी भाषा में है, अरिथमेटिक मीन मैथमेटिकल लैंग्वेज में है, बट फॉर्मूला दोनों का सेम। ओके मैम, ठीक है। यस मैम। Yes, Amarjot, what do you want to ask? Amarjot for? No reaction, anyhow. मैम यू हैव अनम्यूटेड मी। Yes, बेटे। What did you मैम say? आपने मेरे को अनम्यूट कर दिया है। गलती से हो गया होगा। So you are, पूरी नटशेल में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमने फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा किया अरिथमेटिक मीन। रिप्रेजेंटेटिव इसको क्यों बोला? क्योंकि इसके अराउंड जो है डाटा की, डाटा घूमता है, इसी के अराउंड वैल्यूज आती हैं, क्लस्टर होती हैं। जैसे 47.3 एवरेज आई, 45 भी काफी इसके नजदीक है, 47 भी काफी इसके नजदीक है, 50 भी काफी इसके नजदीक है, यानी कि डाटा जो है 47.3 के अराउंड ही घूम रहा है। What is the way to find arithmetic mean? Sum of observations over total number of observation. सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, बाकी बातें बात। That arithmetic mean, to find arithmetic mean, the formula that we will use is sum of observations over number of observations. मैम एंड में हमारा आंसर 47.3 हमने लिखना है ना? 47.3. ओके। अब आपके पास इससे रिलेटेड कुछ थिंग डिस्कस एंड राइट है। इज द मीन बिगर ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इज इट स्मॉलर देन ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन? लेट अस सी। आपके पास मीन की वैल्यू ये आई, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इसको अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि मीन ना तो सबसे बड़ा है और ना ही सबसे छोटा है। मीन की वैल्यू ना तो सबसे छोटी आई ना ही सबसे बड़ी आई। मीन की वैल्यू इसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी, या फिर मिनिमम के इक्वल भी हो सकती है। मिनिमम के इक्वल देखो आपके एग्जांपल लिखा हुआ है पेज नंबर 61, 4, 5 और 3 का मीन 4 आ गया, मतलब इन तीनों में से कोई एक हो सकती है मीन की वैल्यू, इन तीनों में से कोई एक हो सकती है, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी। 45 से कम मीन नहीं हो सकता और 50 से ज्यादा मीन नहीं हो सकता। मीन की वैल्यू हमेशा आपके डाटा के बीच वाले पॉइंट्स में से के आसपास ही घूमेगी। सो वी कांट से दैट मीन इज बिगर देन ऑल द वैल्यूज। नो, 50 से ज्यादा इसका मीन आ ही नहीं सकता डाटा का, ठीक है। और मीन इज स्मॉलर देन ऑल द वैल्यूज, मतलब 45 से कम भी नहीं आ सकता। इनमें से कोई हो सकता है, इनके बीच बीच में कोई हो सकता है, पर इनमें इन सबसे स्मॉलर और इन सबसे बिगर नहीं हो सकता। थिंक डिस्कस एंड राइट का फर्स्ट डॉट बुलेट देखो, वहां पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं। इज मीन बिगर ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन? आप सीधा लिखो नोट बना के। मीन ऑफ द डाटा is always lies between the given observations. It always lies between the given observation. जो दी हुई ऑब्जर्वेशन है उनमें ही लाई करेगा, उनमें से कोई एक हो सकता है। नोट bigger than the observations and not smaller. ना तो बड़ा हो सकता है ऑब्जर्वेशन में से, सारी ऑब्जर्वेशन में से जो है उससे उन सारी ऑब्जर्वेशन, अगर 50 बड़ी ऑब्जर्वेशन है 50 से ज्यादा मीन नहीं आ सकता, 45 छोटी है तो 45 से छोटा मीन नहीं आ सकता। इनमें से कोई हो सकता है और इनके बीच में भी लाई कर सकता है। इज इट ओके? केवल 1 मार्क्स में ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि आपके पास ये डाटा दिया हुआ है और इसका मीन बोला 55, तो ये नहीं हो सकता, राइट? इज इट ओके? यस मैम। It's called
arithmetic mean of the data, one of the representative of the data, common, the most common representative of the data. What is representative? The central tendency of the data. That means जिसके around data घूमता है, central होता है, उसको बोलते हैं central tendency. और सबसे पहली central tendency क्या है? Arithmetic mean, one of the measure of central tendency. किसी डाटा की central tendency को measure करना है तो arithmetic mean इसका एक तरीका है, method है. It is a way to measure the central tendency of the data. और भी ways करेंगे. This is one of the way, and this is the most common way, most common representative, right? ये सारा हमने जो भी आज किया उस सब में से आपने क्या याद रखना है कि डाटा के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. अरिथमेटिक मीन उनमें से एक है. अरिथमेटिक मीन को सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर भी बोलते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी मीन जिस पे डाटा जाके केंद्रित हो रहा है, घूम रहा है जिसके आसपास, उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं. अरिथमेटिक मीन इज वन ऑफ द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. एंड व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? दैट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. फॉर्मूला इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बोलो मितार्थी. ओवर. आई हैव अ डाउट. जस्ट अ मिनट वेट. आप बोलो फॉर्मूला. ओवर. आप बोलो बिशप. सम ऑफ द, लिखा हुआ है सामने आपको, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ओवर. आप बोलो. ये फॉर्मूला आपने याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी साविया, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? बेटे पूछो. बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ. मैम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन? एक बार बता दो. हाँ जी मैम एक बार अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन बता दो. arithmetic mean is one of the you can say representative of data. It is one of the measure of central tendency. दो बातें लिखनी है आपको. representative of data, one of the measure of central tendency. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, ma'am. मैम अगर एग्जाम में मैम हमें इस तरह से क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द लाइक मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, एंड मैम हमें ऑप्शंस दी होती हैं एवरेज एंड अरिथमेटिक मीन, तो मैम उसके अंदर अरिथमेटिक मीन को चूज करेंगे, एवरेज को चूज करेंगे? दोनों ऑप्शन सेम है. अगर आपको एवरेज ओके मैम. दिया होगा तो एक ऑप्शन लिखा होगा बहुत. ठीक है. यस मैम. ये दित्या. आपने मीन ऑफ द ऑलवेज लिखा हुआ है. क्या बेटे? मैम मीन इज ऑलवेज लिखा हुआ है. मैम उसकी क्या लिखी नीचे डेफिनेशन? See, mean of the data is always lies between the given observation, not bigger than the observation, not smaller. ये तो नोट है. अरिथमेटिक मीन में मैंने लिखा the most common representative of data. ओके मैम. हाँ जी गौरीश, आई एम टू सरप्राइज्ड. गौरीश, कार्तिक, ये सारे बच्चे मतलब जब व्हेन आई टीच एट द सेम टाइम दे फ्रेम द क्वेश्चंस एंड दे आस्क मी द डिफरेंट क्वेश्चंस एंड आई लाइक कि चलो क्लास में कोई डिस्कशन होती है. बट आप लोगों को पेपर में क्या हो गया? एक्चुअली मैम लास्ट में आई हैव फुली लाइक मैंने बहुत अच्छी तरह से लाइक मैं बहुत सेटिस्फाइड था मेरे एग्जाम से, बट लास्ट में लाइक मेरे पास टाइम कम था एंड मेरे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहते थे. एंड एक तो एक जो केस स्टडी थी उसका मुझे पता था कि मेरा 1 मार्क का मेरा क्वेश्चन रॉन्ग था. मैंने लाइक वो जल्दी के अंदर ही वो रॉन्ग कर दिया. जब भी कभी कोई सॉल्यूशन अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन, उसको उसी टाइम चेक करना है. ठीक है. यस मैम. एक्चुअली मैम वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर से था ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो वो उसके अंदर टाइम लगा था. So you will see your mistakes in the papers quite well and you will learn a lot from your mistake and will not Yes, ma'am. repeat in the future. Okay? Yes ma'am. Yes ma'am.